ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وہ جیسے ہی تھانے میں آئی سب نے سلام کیا، وعلیکم السلام۔ وہ سلام کا جواب دے کر ظہیر سے کچھ کہنے لگی۔ ظہیر، تمہیں پتہ ہے نا کل میری مہندی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم کل سول کپڑوں میں سپاہیوں کے ساتھ میرے گھر کے چاروں طرف نائٹ سیکیورٹی ٹائٹ لگا کر دینا، کوئی بھی غیر آدمی بلا وجہ اندر نہ آ پائے۔ ہوشیار رہنا۔ وہ انہیں سمجھا رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا وجدان ہر حال میں اس دن آئے گا اور شادی رکوانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس لیے اس نے سیکیورٹی کا بولا، اوکے میڈم، آپ فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ وہ احتراماً بولا، اوکے، اور سنو، اب دلاور کیس کی ساری فائل کیبنٹ میں رکھوا کر تالا لگوا دو، شادی کے بعد اس کیس کو دیکھتی ہوں۔ جی اوکے میڈم۔ وہ فوراً فائلوں کو تلاشنے میں مصروف ہو گیا جبکہ لیکا حشمت کچھ ہی دیر میں وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ پولیس اسٹیشن سے واپس گھر جا رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ پھر اس نے رائٹ سائیڈ مرر میں دیکھا تو اسے ایک سفید رنگ کی گاڑی نظر آئی جو کب سے اس کے تعاقب میں تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور کچھ ہی وقت میں وہ اپنے گھر کے سامنے تھی۔ وہ اندر تو چلی گئی لیکن بار بار اس کی نگاہوں کو وہی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچے بنا نہ رہ سکی، آخر کون میرا پیچھا کر رہا تھا اور کیوں؟ کئی سوال اس کے ذہن کو جکڑ رہے تھے۔ اسے فوراً وجدان کا خیال آیا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ جب بھی ملا بلیک اور بہت بڑی گاڑی میں ملا تھا وہ تو، اور اگر وہ نہیں تو اور کون؟ وہ سوچے جا رہی تھی لیکن دوسرے ہی پل اسے یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً وجدان ہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شادی رکوائے گا میری۔ اب دیکھتی ہوں مسٹر وجدان تم کیسے بچ پاتے ہو مجھ سے۔ اگر آج تم میرے گھر تک آ گئے تو پولیس سے بچ نہیں پاؤ گے اور ایسا کیس بناؤں گی کہ تمہاری ساری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ وہ بے فکر تھی اور کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ چمندین، وجدان نے اسے ہال میں داخل ہوتے ہوئے آواز دی۔ جی چھوٹے صاحب۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ مہندی کے فنکشن کا سارا انتظام تمہارے ذمے ہے، ہر چیز اچھے سے ڈیکوریٹ کروانا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ خیال رہے کہ عائش اور میری دونوں کی مہندی کا فنکشن ادھر ہی ہوگا، اکٹھے۔ وہ اسے ہدایت دیتے ہوئے مڑا ہی تھا کہ سامنے ادیبہ بیگم یعنی اپنی پھپھو کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھپھو، آپ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ فوراً ادیبہ کے گلے لگا۔ ہاں میرے لاڈلے، میں ہی ہوں، تمہاری پھپھو جان۔ وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے محبت سے بول رہی تھی جب فوراً اس نے ادیبہ کا بازو پکڑا اور اس کے کمرے کی طرف لے گیا۔ چلے میں آپ کو کسی اور سے بھی ملواتا ہوں، اسے پہچاننے بھلا کون ہے وہ؟ وہ کمرے میں بیٹھے عائش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ تو عاشی ہے۔ وہ فوراً پہچان گئی۔ واو پھپھو ادیبہ، آپ، کیا بات ہے، اتنے سالوں بعد آپ کو دیکھا ہے، لیکن کیا حسن، اف، اور ایک شعر یاد آ گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے شریر ہوا۔ وہ آئے ہمارے گھر، اللہ کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ وہ ادیبہ کی طرف جھک کر گویا ہوا اور اس نے ہمیشہ کی طرح تنگ کرنے پہ عائش کے کان کھینچے۔ پھپھو یار چھوڑ بھی دیں، وہ کان چھڑواتے ہوئے بولا۔ تم ابھی تک اتنے ہی شریر ہو، ادیبہ نے کان چھوڑتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ جی ہاں پھپھو، بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور اس کے بھی کان کھینچے، صرف میرے ہی کیوں؟ وہ منہ بنا کے بولا۔ وہ بہت سمجھدار بچہ ہے اور تم شریر کہیں کے۔ اس نے دونوں کو گلے لگا لیا۔ وہ پھپھو تو وجدان کی تھی لیکن دونوں کو بچپن سے ہی اس کے پاس آتے تھے۔ عائش تو رہتا ہی وجدان کے گھر تھا اور وجدان اسے اپنا بھائی مانتا تھا، اور ادیبہ وجدان سے بہت محبت کرتی تھی اور اسی لیے اس کی وجہ سے عائش سے بھی کافی قریب ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً 10 سال بعد پاکستان لوٹی تھی وجدان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے۔ وہ ابھی سیلون سے نکلی ہی تھی تو سامنے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ آگے وجدان کی گاڑی سے ٹیک لگائے وہ کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے اس کے پاس جا کر بولی۔ تمہارا پیچھا۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے مزے سے بول رہا تھا جبکہ لیکا کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارے کان بند ہیں جو تمہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا؟ وہ اسے یک ٹک دیکھنے پہ اور غصے سے لال ہو رہی تھی۔ ہٹو پیچھے میری گاڑی سے، مجھے جانا ہے۔ وہ فوراً اس کی نظروں سے دور گھر پہنچنا چاہتی تھی جبکہ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر آخرکار لیکا نے اسے ایک سائڈ پہ دھکا دے دیا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اس نے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ قہر برساتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ہو میرا مسئلہ، صرف تم، اسی لیے پیار سے کہہ رہا ہوں کہ بس تھوڑی سی بات کرنی ہے تم سے۔ آؤ میری گاڑی میں۔ وہ بہت اچھے انداز میں بات کر رہا تھا جبکہ لیکا کو اس کا ہر انداز زہر لگ رہا تھا۔ وہ جتنا محبت سے بات کرتا وہ اتنی ہی بدتمیزی سے بولتی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور بھاڑ میں جائیں تمہاری فضول باتیں، میرے پاس اتنا بیکار ٹائم نہیں ہے۔
कि तुम पे सर्व करूं, समझे? और जानते हो मेरी नज़र में तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। बस बहुत हो गया, बंद करो ये बकवास और इधर आओ, बात करनी है तुमसे। वो उसे बाजू से खींच के अपनी गाड़ी की तरफ लेके जा रहा था कि लेका के गुस्से ने सब हदें पार कर दी और एक ज़ोरदार तमाचे से माहौल में खामोशी छा गई। वजदान दिलावर के मुंह पे तमाचा, उसकी आंखों में से जैसे चिंगारियां फूट रही थी। वो इसी लम्हे कोई बिपरा हुआ शेर लग रहा था। उसकी सुर्ख होती आंखों में रियायत की कोई उम्मीद नहीं थी। लेका इस हादसे पे शशदर थी। क्या और कैसा रिएक्शन होगा उसने सोचा तक न था। वो उसकी शोला बरसाती नज़रों की परवाह किए बगैर पलटी जब वजदान दिलावर ने उसका हाथ एक झटके से खींचकर अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम लिया। उसे अपने बाजुओं में बुरी तरह खिंचाव महसूस हुआ, जिससे उसे तकलीफ का एहसास हुआ और वो शख्स उसके बिल्कुल करीब था। उसके नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, जिसकी निगाहों में ऐसा गुस्सा था कि जैसे एक पल के लिए ही लेका हशमत को तहस नहस करके रख देगा। बाजू छोड़ो मेरा। वो उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की सही करने लगी। इस थप्पड़ को आखिरी सांस तक न भूलना, क्योंकि तुम्हें इसका बदला चुकाना है, हर कीमत पर और हर हाल में। उसने एक झटके से लेका को खुद से दूर फेंका और तेज तेज चलता हुआ गाड़ी तक आया और एक आंसू आंख में झटके से जमीन पे मिला दिया और गाड़ी भगा कर ले गया। और लेका शशतर सी खड़ी देखती रही और हैरान अलग उसे खुद पे गुस्सा आया कि उससे हाथ उठाना नहीं चाहिए था। अब पता नहीं वो किस हद तक जाएगा, उसका दिल घबरा रहा था। वो बहुत मुश्किल से गाड़ी तक पहुंची। मेहंदी का फंक्शन जोरों शोर पर था। दोनों बहनें पीले रंग के जोड़े में मलबूस बहुत खूबसूरत लग रही थी। माँ पारा बहुत खुश थी, जबकि सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से लेका के दिल में एक अजीब सा खौफ भी था। उसे डर था कि कुछ गलत ना हो जाए। फिर कुछ ही देर बाद मेहमान मेहंदी की रस्म शुरू कर चुके थे। सब बारी बारी आते और इन्हें मेहंदी लगा के चले जाते। हर तरफ मेहंदी की खुशबू फैली हुई थी। फुल लोड म्यूज़िक चल रहा था। फिर आखिरकार मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होते ही उसने सुकून का सांस लिया और माँ पारा को उठने का इशारा करते हुए अपने कमरे में चली गई। अब उसने कमरे में आते ही पहले भारी मेहंदी का जोड़ा उतारा और हल्का फुल्का सा ड्रेस पहन लिया और बेड पे लेट गई। वो बाहर बैठ कर काफ़ी थक चुकी थी। वो अभी सोने ही लगी थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने मोबाइल पकड़ा और कान से लगा लिया और थकी सी आवाज़ में बंद होती आंखों से बोलने लगी, हेलो, कौन? मैडम, माफ़ कीजिएगा इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन बताना भी ज़रूरी था। वो माजरत करते हुए अंदाज में बोला, जबकि लेका के अंदर बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो फ़ौरन पूछने लगी, हाँ बोलो ज़हीर, क्या बात है? मैडम, कुछ देर पहले मैंने एक नकाब पोश देखा। वो मुसलसल आपके घर के चक्कर काट रहा था। फिर कुछ ही पल में वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था और जब मैंने छुप के सुना तो वो आपको अगवा करने की बात कर रहा था फ़ोन पे। और जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो फ़ौरन भाग गया। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, सिक्योरिटी टाइट है, वो कभी भी दोबारा कोशिश नहीं करेगा। ओके ठीक है, तुम लोग अलर्ट रहो। उसने हिदायत देते ही फ़ोन बंद कर दिया और मुसलसल सोचने लगी। मेरा शक ठीक था, वो आया था और उसका हर इरादा नाकाम हो गया। थैंक्स या अल्लाह, तुमने इज़्ज़त रख ली मेरी। वो अल्लाह पाक का शुक्र करने लगी। आज मेरे यार की शादी है, मैं खुशी विच नचदा फिरा। हो रब ने क्या जोड़ी है बनाई, मैं खुशी विच नचदा फिरा। फुल वॉल्यूम में सॉन्ग चल रहा था। बार बार वजदान की तरफ इशारा करके वो आज दिल खोल कर नाच रहा था। यार बस कर दे, अल्लाह का वास्ता इधर आ जा, अब क्या पागल हो गया है तू? वो आयश को मुसलसल आधे घंटे से नाचते देख रहा था, जबकि आयश इस वक्त उसकी कोई बात भी सुनने के हक में नहीं था। अब वो फुफ्फो को खींच के ले गया डांस के लिए, तो वो भी जैसे तैयार बैठी थी फ़ौरन गई और शुरू हो गई। फिर कुछ ही देर बाद वो थक हार कर उसके साथ स्टेज पर पड़े खूबसूरत काउच पे बैठ गया, जो गुलाब के गुलदस्तों से सजा हुआ था, जबकि बैक साइड पर स्टेज बेशुमार रंग बिरंगे फूलों से महक रहा था। हर तरफ बेशुमार कीमती लाइट्स लगवाई गई थी, जिनकी चमक धमक दूर दूर तक फैल रही थी। दिलावर पैलेस खूबसूरती का मुजस्समा लग रहा था। अब क्यों आए तुम? अब भी जाओ, नाचो जाकर। वजदान ने उसे घूरते हुए दिखा। जिगर, क्या हो गया तुझे? इतना सड़ा हुआ क्यों है? अपनी ही मेहंदी पे क्या भाभी से तू फाइट नहीं हो गई तेरी कोई मेरे भाई? आयश उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ गया। छोड़ उसे, मुझे उसकी कोई बात नहीं करनी। अब जो भी बात होगी कॉल पे होगी। वजदान को उसका थप्पड़ फिर अपने गाल पे महसूस हुआ। उसने बात बदल दी। तू बता ज़रा, अपनी शादी पे कौन ऐसे पागलों की तरह नाचता है भला? अरे जिगर, शादी कौन सा रोज़ रोज़ होनी है, मेरी पहली शादी है यार, नाचना तो बनता है ना। वो आंख मारते हुए शरारत से बोला। और वैसे भी मैं अपने लिए नहीं, अपने यार के लिए नाचता हूँ। वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा था, जब पुप्पो मेहमानों के झुरमुट में से निकल कर मुश्किल से फूलते सांस के साथ उन तक पहुंची। जब आयश ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज तक लाना ज़रूरी समझा। लो, अब पुप्पो को भी डांटो, वो भी तो मेरे साथ ही डांस कर रही थी। वो बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोला, तो वजदान ने उसे घूरा और उसी पल अदीबा उनके दरमियान बैठ गई। चल शरीर कहीं के, वो आयश को घूर कर फ़ौरन बोली। उन्हें दुआएं देने लग गईं। अल्लाह मेरे बच्चों को हर बुरी नज़र से बचाए, हमेशा खुश रखे। वो दोनों को सीने से लगाकर मोहब्बत से बोली।
وہ ریڈ کلر کے لہنگے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی موٹی اور خوبصورت آنکھوں میں لگا کاجل اس کی آنکھوں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی کہ ایک دم سے ایک رومال اس کے منہ پہ تھا۔ اس نے پوری آنکھیں کھولی تو آئینے میں اپنے پیچھے کھڑے نقاب پوش کو دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے رکی۔ اس نے ابھی سوچنے کی کوشش ہی کی تھی کہ یہ کون ہے کہ فوراً اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور کچھ ہی پل میں وہ مکمل بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ اسی پل وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھانے ہی والا تھا کہ کمرے کا فوراً دروازہ کھلا اور سامنے ماں پر آنکھیں پھاڑے اس نقاب پوش کو دیکھ رہی تھی جس کی باہوں میں لیکا کا بے ہوش بدن چھول رہا تھا۔ وہ چیخنے لگی، اس سے پہلے کہ کوئی اور آتا وہ لیکا کو وہیں زمین پہ گرا کر بھاگ چکا تھا۔ لیکا کیا ہوا تمہیں؟ اٹھو۔ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جب فوراً حشمت اور نساء بیگم بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے۔ وہ لیکا کو بے ہوش دیکھ کر تڑپ گئے اور اس کی طرف لپکے۔ میری بچی کیا ہوا تمہیں؟ اٹھو حشمت، ڈاکٹر کو بلائیں پلیز۔ وہ حشمت کو بے چینی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ فوراً وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر بعد اس کے ہمراہ ڈاکٹر تھا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو کھول کھول کر دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے میں وہ اچھی طرح سے معائنہ کرنے کے بعد حشمت کو دیکھتے ہوئے بولا، حشمت صاحب اب لیکا بیٹی کافی بہتر ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، تقریباً جلد ہی اسے ہوش آ جائے گا اور جیسے ہی ہوش آئے اسے یہ خوراک دے دینا۔ وہ حشمت کو خوراک پکڑاتے ہوئے دینے لگا اور پھر کچھ ہی دیر میں ہاتھ ملاتے ہوئے جانے کی اجازت لی اور چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی وہ لیکا کی طرف لپکا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ بابا، لیکا کو کوئی اغوا کرنا چاہتا ہے۔ ماں پارا باپ کی بے چینی دیکھ کر رہ نہ سکی تو اس نے فوراً بول دیا، کیا مطلب؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ ماں پارا کی طرف پلٹے اور پوچھنے لگے۔ بابا، میں سیلون سے ریڈی ہو کے سیدھی لیکا کے کمرے میں گئی اور سامنے دیکھا تو وہ نقاب پوش لیکا کے منہ پہ رومال رکھے کھڑا تھا اور میرے زور سے چیخنے پر وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ حشمت ماں پارا کی پوری بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ یہ تو میں نہیں جانتی بابا، لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ شخص لیکا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ باپ کو سمجھا رہی تھی جب فوراً لیکا کی ہلکی سی آواز ابھری۔ وہ دونوں اس کی طرف لپکے۔ لیکا میری جان، اب اٹھو۔ ٹھیک ہو تم؟ حشمت لیکا کے ہوش میں آتے ہی اس سے پوچھ رہے تھے جب وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب حشمت نے فوراً منع کر دیا، ابھی لیٹی رہو، ویسے بھی ابھی بارات کے آنے میں آدھا گھنٹہ پڑا ہے۔ بابا میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو، وہ باپ کو یقین دلا رہی تھی۔ بیٹا وہ کون شخص تھا؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہیں بابا مجھے نہیں پتا، لیکن بہت جلد میں اس تک پہنچ جاؤں گی، وہ زیادہ دیر بچ نہیں پائے گا مجھ سے۔ وہ بیڈ سے اٹھ گئی، کچھ سوچنے لگی اور اس کا وجدان پہ شک یقین میں بدلتا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ حرکت وہی کر سکتا ہے، وہ غصے سے بڑبڑائی، جبکہ حشمت اور نساء اسے دیکھ کر اب کافی اطمینان میں تھے۔ سو باہر مہمانوں کو دیکھنے اور بارات کا انتظام کرنے چلے گئے، جبکہ ماں پارا لیکا کو اس کا جھمکا پہنانے لگ گئی جو اس کے کان میں خود بچانے کی کوشش میں نیچے گر گیا تھا۔ وہ ریڈ کلر کی شیروانی میں کسی ملک کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ سب کی نظریں اس کے خوبصورت سراپے پہ ٹھہر گئیں اور اس کے ہمراہ عائش بھی ریڈ اور وائٹ کلر کی شیروانی میں خوبصورتی کی مثال لگ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے دلکش چہرے پہ دلکش سی مسکراہٹ سجائے ہال میں داخل ہوئے۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ نساء بیگم نے دونوں کو محبت سے دیکھا، جبکہ حشمت نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا اور اسی پل بے شمار پھولوں کی برسات کی گئی۔ پھر انہیں نیٹ کے پیسز اور گلاب کے پھولوں سے سجائے گئے اسٹیج پر لے جایا گیا، جہاں پھولوں کی خوشبو سے ماحول بہت پرسکون سا ہو گیا تھا۔ وہ نظر گھما کر پورے ہال کا جائزہ لے رہا تھا جب ایک دم سے اس کے کان میں عائش کی شرارت بھری آواز گونجی۔ کیا بات ہے جگر، کسے ڈھونڈ رہا ہے میرے بھائی؟ تھوڑا ویٹ کر لے، پھر ہمیشہ کے لیے تو اس کا اور وہ تیری ہو جائے گی۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آج وہ میری ہو جائے گی، کوئی نئی بات بتا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ عائش کچھ کہتا کہ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر چپ ہو گیا۔ پھر اچانک سے وجدان کی نگاہ سامنے آتی لیکا پر پڑی اور اسے لگا جیسے اس کی نظریں جم سی گئی ہوں اس پر۔ وہ سر سے پاؤں تک سراپائے حسن تھی، ریڈ لہنگے میں ملبوس وہ شاید کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ نظریں جھکائے قدم اس کی طرف بڑھا رہی تھی، جبکہ عائش کی نظر اس کے ہمراہ چلتی ماں پارا پر ٹکی ہوئی تھی، جو سفید رنگ کی بدولت ریڈ اور کلر کے لہنگے میں کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ پھر وہ لڑکیوں نے انہیں کچھ پل کے لیے ان کے ساتھ بٹھا دیا، جس سے وجدان نے ایک دم سے نگاہیں بند کر لیں اور اسے اپنے قریب محسوس کرنے لگا، جبکہ لیکا کچھ گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ اس نے تو اس شخص کو دیکھا تک نہ تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور نگاہیں مسلسل جھکائے رکھی، جبکہ ماں پارا سب لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی عائش کی طرف دیکھتی اور مسکرا کے نگاہیں جھکا لیتی۔ کچھ ہی لمحوں بعد نکاح شروع ہو چکا تھا۔ مولوی عائش اور ماں پارا کا نکاح پڑھا رہا تھا۔ ان دونوں کے نکاح ہوتے ہی سب نے مبارکباد دی اور اسی پل وجدان اور لیکا کا نکاح شروع ہو گیا۔ لیکا، حشمت، کیا آپ کو 5 لاکھ سکہ رائج الوقت بے ماں وجدان دلاور نکاح میں قبول ہے؟ یہ نام سنتے ہی لیکا کی نگاہیں اپنے ساتھ براجمان وجدان کی طرف اٹھیں اور اسے لگا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی اور فوراً اس کے لب سے بمشکل سے 1-2 لفظ ہی نکلا، تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی جب ایک بار پھر مولوی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔
तब उसने मुड़कर मौलवी को देखा और साथ ही वजदान की आवाज़ भी उसके कानों में धीरे से गूंजी, बोल दो कबूल है, इसमें भला क्या मज़ायका है, तुम्हारी भलाई है इसमें और सबकी खुशी भी। देखो सब कितने खुश हैं, अपने पेरेंट्स को देखो। वो हशमत और निसा की तरफ इशारा करते हुए बोला। उसने फ़ौरन अपने माँ बाप को देखा। उनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी। एक पल को उसे लगा कि वो बेबस हो गई है और एक खामोश आंसू चुपके से उसकी गाल से टपक कर उसके कदमों में गिर गया। कबूल है। उसने 3 बार कबूल जैसे अल्फाज टूटते एक साथ खुद को वजदान दिलावर को सौंप दिया। और ये वही जानती थी कि कैसे उसने निकाह के बाद 1-2 रस्में हुई और जिसके बाद फ़ौरन हशमत और निसा की आंखें अश्कबार हुईं। मैं अपने जिगर के टुकड़े को आप लोगों को दे रहा हूँ, इनका बहुत ख्याल रखना बेटा, हशमत ने उन दोनों के सामने बहुत दुखी आवाज़ में कहा। फिर दोनों बहनों को बेशुमार दुआओं के साथ साए में रुखसत कर दिया। कमरे में दाखिल होते ही खूबसूरत और अनगिनत गुलाब की पत्तियों से उसका इस्तकबाल किया गया। पूरा कमरा इस पल गुलाब की पत्तियों से भरा पड़ा था। कमरे के सेंटर में बहुत वसी बेड रखा गया था जिसकी बैक साइड पर रेड फ्लावर्स की मुकम्मल सजावट की गई थी। बेड के चारों तरफ कैंडल्स का हिसार बनाया गया था जिसके चारों तरफ फूल ही फूल थे। बारीक नेट के कपड़े की मदद से छत से लेकर बेड के नीचे तक नेट मोतियों की खूबसूरत लड़ियों को लटकाया गया था। वो नज़रें झुकाए अदीबा के साथ आगे बढ़ रही थी जब अदीबा उसे बेड पे बिठाकर उसकी पेशानी पे बोसा देकर वहाँ से चली गई। और इसी पल ज़ुबैदा बेगम उसके ऐन सामने बैठ गई और उसे मोहब्बत से देखते हुए कुछ समझाने लगी। बेटा, मैं वजदान की दादी हूँ और मैं वजदान के बारे में तुम्हें कुछ बातें समझा दूँ ताकि आगे जाके तुम्हें कोई मसला ना हो। वजदान का दिल बहुत साफ़ है। उसे अगर प्यार से ट्रीट करोगी तो मुझे यकीन है वो तुम्हें दुनिया की हर खुशी देगा। वो थोड़ा जज्बाती और गुस्से वाला तो है लेकिन साथ साथ प्यार करने वाला भी है। और एक बात ये कि बदतमीज़ी करने वाले से उसे सख्त नफ़रत है और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हारा प्यार और तुम्हारी तवज्जो उसे बदल देगी। ये सुनते ही लेका को उसे भरे बाजार में थप्पड़ मारना याद आ गया और उसका दिल घबराया। अच्छा बेटा, अब मैं जाती हूँ, अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। वो उसे दुआ देती वहाँ से उठ गई जबकि लेका सोचों के जाल में फंसकर बेचैनी से समंदर में डूबती जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे धोखा खा सकती हूँ? ये क्या हो गया मेरे साथ? किस्मत ने ये कैसा मजाक किया है? जिस शख्स से मुझे नफरत महसूस होती थी उसी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो दोनों हाथों से सर थामे सोचे जा रही थी। हर तरफ सफ़ेद फूलों की सजावट और इसमें मौजूद कुछ गुलाब के फूलों की सजावट से कमरा कुछ ज़्यादा ही नफीस और पुरसुकून महसूस हो रहा था। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाकर कमरे का जायज़ा ले रही थी जब एक ही पल में अचानक से वो उसके सामने था। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो उसके सामने बैठते हुए गर्दन को थोड़ा नीचे को झुका के बोला और साथ ही उसका हाथ पकड़कर शेर सुनाने लगा। वो आए हमारे घर में अल्लाह की कुदरत, वो आए हमारे घर में अल्लाह की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। वो उसके शायराना अंदाज पे खुल के मुस्कुराई जबकि आयश ने प्यार से उसका बाजू पकड़ा और अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया जिस पर वो नज़रें झुका गई। दीदार करवाइए बेगम जान, हम कब से तरस रहे हैं। उसने उसकी ठोड़ी पे हाथ रखे उसका चेहरा ऊपर किया और दुपट्टा हटा दिया। वो फ़ौरन नज़रें झुका गई और आयश ने 2 खूबसूरत कंगन उसके खूबसूरत और नाजुक बाजुओं में पहना दिए और उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से उसके कान के करीब शरारत से बोलने लगा। ये हैं आपके क्यूट से हबी की तरफ से छोटा सा मुंह दिखाई का तोहफा, कबूल कीजिए बेगम और अब बता दीजिएगा कैसा लगा। वो धीरे से बोला, बहुत खूबसूरत है, आपने जितनी मोहब्बत से पहनाया है ना इस अंदाज पे तो ये तोहफा और कीमती हो गया। माँ पारा ने नज़रें उठा के उसकी तरफ देखा और मोहब्बत से उसके हाथ पे हाथ रखते हुए उसके गिफ्ट की दिल से तारीफ़ की। अच्छा तो मिस माँ पारा, क्या आप आखिरी सांस तक मेरा साथ निभाएंगी, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगी और मुझे मेरी तरह चाहोगी? वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर मोहब्बत से पूछ रहा था जिस पर वो दिल से मुस्कुराई उसके कंधे पे अपना सर रख दिया। उसके कदमों की चाप पर लेका के दिल की धड़कनें और भी तेज़ होती गईं। वो कमरे में दाखिल हो चुका था। और दरवाज़ा बंद करते ही अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसके करीब आ चुका था जबकि लेका आंखें बंद किए भी उसे महसूस कर रही थी। वो उसे देखना चाहती थी या शायद वो उसका सामना ही करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके करीब आने पर फ़ौरन बेड से उठने की कोशिश करने ही लगी थी कि एकदम से वजदान के हाथ की मजबूत गिरफ्त ने उसके बाजू को पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो घरवाली? वो उसे बाजू से खींचकर दोबारा बेड पे बिठाते हुए बोला, जहाँ मर्जी जाऊँ, तुमसे मतलब, उसकी आंखों में देखते हुए बोली जबकि वजदान उसकी इस अकड़ पर गुस्से से तिलमिला उठा। अब तो तुम्हारा हर मतलब मुझसे शुरू और मुझ पर ही ख़त्म होता है। खैर छोड़ो, कोई ख़ास बात करते हैं। उसके करीब और आ रहा था जबकि वो उससे दूर हो रही थी। हटो पीछे, जो भी बात करनी है दूर रहकर करो।
वो तकरीबन उसे धक्का देते हुए बोली, दूर? अच्छा, तो क्या मुझे दूर करने का तुम्हारे कानून में कोई हल है? अगर है तो वो हल इस्तेमाल करो, चलो चलो जल्दी करो। या फिर कुछ और? अरे हाँ, हथकड़ी लेकर आओ ना, वो लगाओ मुझे, ताकि मैं तुम्हें छू ना सकूं, मतलब टच ना कर सकूं। वो उसे कमर से थाम कर अपनी तरफ खींच चुका था और उसकी आंखों में देखते हुए तकरीबन गुस्से से बोला, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी जान ले लूं। वो खुद को छुड़वाते हुए नफरत भरे लहजे में बोल रही थी, ना ना डार्लिंग, जान तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें अकेली को सुकून से मज़े में इधर छोड़कर मर जाऊं? सोचना भी मत, क्योंकि जब भी मरूंगा तुम्हें साथ लेकर ही मरूंगा, और अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी के हर लम्हे को तहस नहस करना है डार्लिंग। वो अपने हाथों की गिरफ्त उसकी कमर पे मज़ीद सख्त करते हुए कहर बरसाती आंखों से देखते हुए बोला, मैं नहीं मानती इस शादी को और ना ही ऐसे किसी भी रिश्ते को। वो चिल्लाई ही थी कि जब वजदान ने फ़ौरन से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और वो मुसलसल आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। ना ना, ये तो ना कहो डार्लिंग, क्योंकि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही तो हुआ है, और वैसे भी अब तुम मानो या ना मानो क्या फ़र्क पड़ता है। हो तो तुम मिसिस वजदान दिलावर, वो उसकी आंखों में देखकर बोलता रहा, जबकि वो फ़ौरन से ख्याल आया उसे, अरे यार, मुंह दिखाई का गिफ्ट तो तुम्हें देना ही भूल गया था मैं। उसने उसे छोड़कर अपनी पॉकेट में से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसमें से एक खूबसूरत ब्रेसलेट निकालकर उसकी तरफ फेंक दी, ये लो पहन लेना और कभी बाजू से गायब ना हो। फिर वो उसके और करीब आ गया, जिस पर वो मजीद फट पड़ी, हटो पीछे, मेरे करीब मत आना। हाँ हाँ, अच्छा, तो अब तुम मुझे रोकोगी? मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अफसोस तुम्हारा ये ख्वाब ही रह जाएगा कि मैं तुम्हें छूने की ख्वाहिश करूंगा। अब ऐसा करो, उठो बेड से और जाओ अपने सोफे पर, कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। जाओ जाओ, शाबाश। वो बेड से थोड़ा करीब पड़े सोफे की तरफ इशारा कर रहा था। जब वो फ़ौरन उठकर बात में गई, कपड़े चेंज किए और कुछ पल वजदान की हरकतों के मुतल्लिक सोचने लगी और थोड़ी देर में सोफे पे सो गई, जबकि वो उसे काफ़ी देर तक सोई हुई यूं ही देखता रहा। अभी तो शुरुआत है मिस लेका, आगे आगे देखो होता है क्या। और उसकी तरफ देखते हुए वो बोल रहा था, वलीमे के ड्रेस में आज वो और भी दिलकश लग रही थी, जबकि वजदान ब्लू कलर के पेंट कोट में मलबूस बेहद पुरकशिश लग रहा था। और स्टेज पर बैठे हुए भी वो दोनों मुसलसल शरारत से मुसलसल लेखा को देख रहा था, उसे तंग कर रहा था, जबकि वो गुस्से से वजदान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जब उसने फ़ौरन अपने हाथ की गिरफ्त और मजबूत कर दी। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है, सब लोग देख रहे हैं, छोड़ो। उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उफ, इतनी परेशानी? डार्लिंग, इतना मत सोचो, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब आम है, और वैसे भी तुम बीवी हो मेरी, अभी गोद में उठा के भी लेके जा सकता हूँ, ओके? हर वक्त हर चीज़ के लिए रेडी रहा करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो दिलावर पैलेस में बैठे हर एक शख्स से बेखबर होकर उसके चेहरे पर झुककर बोल रहा था, जिस पर लेका का दिल चाहा कि अभी उसका मुंह नोच ले। उसे यूं गुस्से में देखकर उसने एकदम से मुस्कुराकर उसका हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। तुम्हें ये सब हरकतें करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि कल भी मुझे तुम बुरे लगते थे और आज भी। वो अपने बाजू को सहलाते हुए बोल रही थी, जिस पर वो खुलकर मुस्कुराया। डार्लिंग, तुम हासिल हो तो गई हो, मेरी हो और अब मेरे पास हो, अब किस हासिल की बात कर रही हो? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? वो फिर से शरारत से बोला ही था कि सामने से अपनी तरफ आते हुए हशमत को देखकर चुप हो गया। माशाअल्लाह, बुरी नज़र न लग जाए किसी की, मेरा बेटा और मेरी बहू एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिलावर उन दोनों को मोहब्बत से देखते हुए वजदान के पास बैठ गया। इसी लम्हे दिलावर के पीछे ही चमन दीन भी आ पहुंचा। जैसे ही उसने नज़र उठाकर देखा तो लेका को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से फ़कत इतना ही निकला, पुलिस ऑफिसर लेका हशमत। उसने गर्दन घुमाकर दिलावर को देखा, जो बहुत खुश था, बिना ये सोचे कि यही लड़की हाथ धोकर दिलावर साईं के पीछे पड़ी है, बहुत बुरा होने वाला है। वो घबराते हुए वहाँ से निकल गया। वजदान का मकसद मुझसे शादी करना था और वो मुझसे शादी करने में कामयाब हो गया, लेकिन वजदान नहीं, वो मुझे इस दिन अगवा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी के साथ तो मेरी शादी हो रही थी, तो फिर वो ऐसा क्यों चाहेगा? अगर वजदान नहीं तो फिर आखिर कौन मुझे अगवा करने की कोशिश कर सकता है? वो शादी के बाद रोज़ इसी सोच में गर्क रहती। अब भी वो बेड पे बैठी सर थामे यही सोच रही थी कि अचानक से वजदान उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। लेका ने एकदम सर उठाया तो उसकी सर को अपनी गोद में पाकर वो एकदम हड़बड़ाई। ये क्या बदतमीजी है, हटो पीछे। वो फ़ौरन से वहाँ से उठ गई कि फिर उसी पल वजदान ने उसका बाजू थाम के बेड पे बैठा लिया और ख़ुद उसकी तरफ झुककर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। क्यों इतना चिढ़ती हो मुझसे? जानती भी हो कि कितना चाहता हूँ मैं तुम्हें। वो आहिस्ता से बोल रहा था, जबकि लेका को उसकी हरकतों से डर लगने लगा था। क्योंकि तुम मुझे अच्छे ही नहीं लगते, इसलिए चिढ़ती हूँ तुमसे। और अब हटो पीछे, मुझे कुछ केस देखने हैं। उसने घबराते हुए उठने की एक बार फिर कोशिश की, लेकिन वजदान की हिसार से फिर नाकाम हो गई। डार्लिंग, दफ़ा करो ये सब केस वेस, इन सब का जिक्र मेरे सामने मत किया करो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ
मैं ज़रूरी हूँ। सो इसीलिए सिर्फ मुझे देखो, मुझे सुनो और मुझे समझो। वो मोहब्बत से बोले जा रहा था, जिस पर लेका के दिल में धड़कनें तेज़ी से धड़कने लगी। उसने पूरे ज़ोर से खुद को उसकी हिरासत से आज़ाद किया और फ़ौरन कमरे से भाग गई और पीछे से वजदान बोलते हुए खुल के मुस्कुराया, डार्लिंग कब तक भागोगी? मुझसे एक ना एक दिन तो हार मानना पड़ेगी तुम्हें मेरी मोहब्बत के आगे। वो पीछे से बोला, जब जिस पर लेका अनसुना करके आगे बढ़ गई। या अल्लाह, ये किस मुसीबत में डाल दिया है तूने? मैं क्या करूं? किसके लिए बद्दुआएं मांग रही हूँ डार्लिंग? कहीं मेरे लिए तो नहीं? वो अकेली बैठी बुड़बुड़ा रही थी कि एकदम से वो अपने पीछे से उसे आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो वजदान बाजू बांधे उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। हाँ, तुम्हारे लिए, और प्लीज़ जान छोड़ दो मेरी। जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। और तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि मैं तुमसे कभी मोहब्बत करूंगी, क्योंकि ऐसा दिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। उसकी आंखों में देखते हुए नफरत से बोली, आएगा, ज़रूर आएगा वो दिन कि जब तुम मुझसे मोहब्बत करोगी लेका हशमत, बेपनाह मोहब्बत। वो उसके और करीब आया और उसकी आंखों के करीब देखते हुए धीरे से बोल रहा था, जिस पर वो फिर से बोली, मैं जान तो दे सकती हूँ मगर तुमसे मोहब्बत करना मुझे कभी मंजूर नहीं। और ये शुक्र करो कि मैं तुम्हें इतनी नफरत के काबिल भी समझ रही हूँ मिस्टर वजदान। उसका गिरेबान पकड़कर तकरीबन चीखी, हाँ डार्लिंग हाँ, लेकिन तुम जैसी बेवकूफ़ को क्या पता कि नफरत भी वहाँ होती है जहाँ कोई रिश्ता हो या किसी रिश्ते की बुनियाद खड़ी हो। याद रखना, मैं तुम्हें मोहब्बत करने पे मजबूर कर दूंगा, तुम हार जाओगी डार्लिंग। उसे उंगली से वार्न करते हुए बेड पे सीधा कर गया और उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा, जबकि लेका इस पल उसे शूट करने का दिल किया। वो गहर बरसाती आंखों से घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।